اس لیے کہ گندم ہم نے 40 لاکھ ٹن امپورٹ کی، ہم نے چینی امپورٹ کی، دالیں امپورٹ کی، اور وہ جو تقریباً دگنا ہو گیا جو کہ پام آئل ہے، جو کہ گھی پاکستان میں جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. تو جتنی چیزیں، اور یہ پھر ڈی اے پی یہ امپورٹ کرتے ہیں، اس کی بھی تقریباً دگنے سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو گئی. تو یہ اتنی جو باہر سے مہنگائی امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں، اس کے لیے اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں یہاں بنائیں. سویابین کے اوپر ہم نے پورا ایکسپیریمنٹ شروع کر دیا کہ وہ بن سکتی ہے. اولیو آئل کی اولیو آئل نہیں، جو زیتون کی جو کلٹیویشن ہوئی ہے، یہ بھی ایک پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے کہ پختونخوا میں خاص طور پہ تو اتنا زیادہ زیتون کا درخت لگے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ایکسپورٹ کرے گا آگے جا کے. تو اب ہم نے پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ جو باہر سے ہم منگواتے ہیں وہ ہمارے میں اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک میں، صرف ہم نے اپنا ذہن لگانا ہے، ریسرچ کرنی ہے، نئی ٹیکنیکس ڈیولپ کرنی ہے، کسان کی مدد کرنی ہے، کسان کو نئی ٹیکنیکس دلوانی ہے. اور اس کے لیے بھی ہمارا پورا پروگرام ہے، ایک جا کے کسانوں کی ٹریننگ کریں، ان کو نئی نئی چیزیں بتائیں. چائنا سے ہم نے جو سی پیک کے اندر ہم نے اب زراعت کو شامل کر دیا ہے. تو چائنا سے جو اب ہم پوری ان کی مدد دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑا ریسرچ کیا، ان کی پیداوار ہمارے سے بہت زیادہ ہے. انہوں نے بلکہ یہ بھی اب ریگستان کے اندر انہوں نے فصلیں اگائی ہیں اور ٹیکنیک سے. اور جو ابھی جمشید نے بتایا کہ یہ جو کھارا پانی ہے، یہ جدھر کئی علاقوں میں جدھر پانی ہمارا نمکین ہے، یا وہ جدھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سیم ہے جدھر، تو وہ ان علاقوں کے اندر بھی فصل اگ سکتی ہے، کئی سرٹن ٹائپ فصلیں اگ سکتی ہیں، اور وہاں شرم فارمنگ ہو سکتی ہے. تو یہ ہم ساری اب اپنا ذہن استعمال کرنا ہے، جو ابھی تک ہم نے کیا ہی نہیں ہے. ہم نے ایسے ہی چلتے گئے ہیں، جو موہنجو دارو کے دنوں سے جو آ رہی ہے اسی طرح کی پریکٹسز چلتی آ رہی ہے پاکستان میں. اب ہم نے ماڈرن ٹیکنیکس لے کے آنی ہے، صحیح استعمال کرنا ہے پانی کے ریزروائرز بڑھانا ہے، ریسرچ، اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ کس طرح کی کیش کراپس اگ سکتی ہیں. مثلا زیتون میں شروع ہو گئے، زیتون کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. پھر ایک جو سبزیوں میں جو سب سے مہنگی اور جو نیوٹریشس سبزی ہے اس کو کہتے ہیں ایووکاڈو. وہ ایک ایووکاڈو کو 600-700 روپے کا بکتا ہے یہاں. تو وہ سوچ لیں کہ وہ 4-5 سال میں وہ پورے وہ دینا شروع کر دیتا ہے پھل، وہ جو اس کا پودا ہے. تو یہ تو سارا علاقہ ہمارے بہت زیادہ علاقے ہیں ایووکاڈو کے لیے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں اس کا. تو اور تو میرا مطلب یہ نئی چیزیں لے کے آنی ہے. جس طرح ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، اور ہماری آبادی اب یہ سوچ لینا کہ 4 کروڑ تھی 1947 میں، اور آج پہنچ گئی 22 کروڑ پہ. تو جس طرح ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اسی طرح ہمیں اپنا ذہن استعمال کر کے اپنی پیداوار بھی بڑھانی ہے، اور اس کے لیے کسانوں کی سب سے زیادہ ہم نے مدد کرنی ہے. یہ جو پورٹل آج میں لانچ کر رہا ہوں، جو کیا لانچ آج، اس کا صرف مقصد اب یہ ہے کہ جس کی آواز نہیں ہے، جو چھوٹا کسان ہے جس کی آواز نہیں ہے، اس کو آواز ملے، اس کو مسلسل کیا ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جس طرح کا بھی ابھی تک اوروں کو تو مل جاتی تھی، مدد مل جاتی شہروں کے اندر، ہمارا پورٹل کے اوپر کوئی بھی کال کرتا ہے ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن کسانوں کا مسئلہ تھا. تو یہ جو اب اسپیشلی چھوٹے کسان کی اب اس کے لیے ہم نے یہ پورٹل کھولا ہے. جہاں سے بھی وہ کال کرے گا، یہاں ادھر سے جائے گا سیدھا چیف سیکرٹری کا آفس، وہ بالکل جو متعلقہ ہیں ان کے پاس جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ بیچارے کے جو چھوٹے کسان ہیں ان کو پانی نہیں پہنچتا، ان کا پانی چوری ہو جاتا ہے، یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے پورٹل کے ذریعے یہ انشور کریں گے کہ چھوٹے کسان سے کسی قسم کا ظلم نہ ہو، کوئی طاقتور بھی اس کے اوپر ظلم نہ کر سکے، کیونکہ کئی دفعہ بڑی جھوٹے کیسز کر دیتے ہیں. میں کیونکہ میاں والی میں مجھے پتہ ہے، وہ چھوٹے کسان جب میں جاتا تھا اپنے حلقے میں تو سب سے زیادہ کمپلین جھوٹا کیس کر دیا، وہ بیچارہ جا کے تھانے میں کسی کو بند کر دیا، کوئی وجہ. اس کی اب آواز ہوگی انشاءاللہ اس پورٹل کی وجہ سے. میں آخر میں آپ سب کو، اپنے کسانوں کو یہ
फिर से ताकीद करता हूँ कि आपने ये समझना है कि गवर्नमेंट आपकी है, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको मेहनत की पूरी कीमत दिलवाएंगे, जो आपका मेहनत का फल है वो पूरा आपको मिलेगा, हर तरह आपकी मदद करते रहेंगे। क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आपको खुश करने के लिए, क्योंकि ये मेरा ईमान है कि जब हम अपने किसानों की मदद करेंगे हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने जहन दिया है, हमने सिर्फ मेहनत करनी है और रिसर्च करनी है। ज़राअत को भी हमने सी पैक में शामिल कर दिया है। दरामदी बिल कम करने के लिए हमें ज़रूरी पैदावार बढ़ाना होगी। सबसे पहले आपको अहम खबर दी कि आवाम पर बिजली बम एक बार फिर गिरा दिया गया है। हुकूमत ने बिजली ₹1.68 फी यूनिट महंगी कर दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। बिजली के कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई थी। आवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने बिजली ₹1.68 फी यूनिट महंगी कर दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, जहाँ पर आवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने बिजली ₹1.68 फी यूनिट महंगी कर दी है। ज़राए के मुताबिक आपको आगाह कर रहे हैं वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। लाहौर और मुल्तान के शहरियों ने इस हवाले से बिजली सस्ती करने का मुतालबा भी किया है। शहरी कहते हैं कि पहले ही इतनी महंगाई है, एक और बोझ उन पर डाल दिया गया है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। लोअर तबका है, इनका थोड़ा ख्याल करें। ये मेरा ख्याल बैक टू बैक दूसरा महीना है कि ये लोग बिजली और पेट्रोल भी बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए। बिजली महंगी होती है या पेट्रोल महंगा होता है, सारा बर्डन सारा का सारा आवाम पे आता है। आवाम का नुकसान हो रहा है, हर लिहाज से नुकसान हो रहा है। कभी बिजली महंगी कर देते हैं, कभी पेट्रोल महंगा कर देते हैं। तो आई थिंक हुकूमत को ख़ुद अभी समझ नहीं आ रही कि हमने इसको किस तरफ लेके जाना है। देखें ना, अभी हफ्ता पहले शायद 10 दिन पहले किया था, अभी फिर आज न्यूज़ आ रही हैं कि दोबारा ये करने वाले हैं। तो ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टाइम, मेरा नहीं ख्याल ये नीचे आने वाले रेट जैसे ही इनकी कीमतों में इजाफा होता जाएगा और आवाम मज़ीद इस गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसती चली जाएगी। ये हुकूमत को सोचना चाहिए गरीब के बारे में, क्योंकि कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है, कभी बिजली महंगी हो रही है, कभी कुछ में गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा। हुकूमत ने बिजली की कीमत में बहुत इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से बिल फी यूनिट बहुत इजाफा हुआ है। आम आदमी बिल अदा नहीं कर सकता, इससे आवाम को बहुत परेशानी हो रही है। बात सिर्फ बिजली तक नहीं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी ₹10 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने कीमतों में रद्दबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। पेट्रोल ₹5.90, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹9.75 फी। इंडस हेल्थ नेटवर्क यूके ने रॉचडेल चैप्टर का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर बरतानिया और आयरलैंड में काम करने वाले सीनियर डॉक्टर्स और कम्युनिटी के अफराद भी मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में फलाही सरगर्मियों में मसरूफ इंडस हेल्थ नेटवर्क यूके ने रॉचडेल चैप्टर का आगाज कर दिया। इंडस हेल्थ नेटवर्क के मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए डायरेक्टर ऑपरेशंस इंडस हेल्थ नेटवर्क यूके डॉक्टर इब्राहिम जमाली का कहना था कि यूके में 18 चैप्टर्स हैं। इंडस हेल्थ नेटवर्क के खालिक डॉक्टर अब्दुल बारी खान का यह विजन था कि वो पाकिस्तान में बरतानवी हेल्थ सिस्टम NHS की तर्ज का एक फ्री हेल्थ सिस्टम पाकिस्तान में भी मुतारफ करवाएंगे। आज की ये जो तकरीब है, इसका बुनियादी मकसद ये कि नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड के अंदर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको इंगेज किया जाए इस बड़े मकसद के तहत कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जहां हर बीमारी का इलाज फ्री किया जा रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कैंसर के जो अंदर मुब्तला बच्चे हैं वो 12,000 तकरीबन उन बच्चों का फ्री इलाज किया गया है। तो ये ऑफिस जो है वो इंशाल्लाह उन लोगों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, यहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है, कि वो इसके साथ इंगेज हो और इंडस हॉस्पिटल को पाकिस्तान को एक NHS के जैसा एक सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करने के अंदर मदद
डॉक्टर अब्दुल बारी ने अपने करीबी साथियों की मदद से 14 साल पहले 2007 में कराची में 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल इंडस हेल्थ नेटवर्क की बुनियाद रखी और आज सारे पाकिस्तान में 1600 बिस्तरों पर मुश्तमिल 14 इंडस अस्पताल भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। इन अस्पतालों में कोई कैश काउंटर नहीं और जहां पर तमाम मरीजों का मुकम्मल फ्री इलाज किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए इंडस हेल्थ नेटवर्क यूके से वाबस्ता गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमा, डॉक्टर हिलाल सदीकी, समाजी कारकुन नसरीन अख्तर और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नबील अफजाल का कहना था कि हम पिछले कुछ अरसे से इंडस हेल्थ हॉस्पिटल के साथ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जहां मरीजों का इंतहाई ख्याल रखा जाता है जबकि उनका इलाज भी बिल्कुल फ्री किया जाता है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੰਡਸ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। ਰੋਸ਼ਡੇਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ साथ देवो। इंडस के साथ मेरा साथ जो है पिछले 4-5 सालों से है और मैं ख़ुद भी चूँकि कराची से हूँ, मैंने इंडस को देखा है और इस थोड़े से अरसे में माशाल्लाह इंडस एक छोटे से यूनिट से होकर अब माशाल्लाह 16-17 हॉस्पिटल्स पूरे पाकिस्तान में टॉप टू बॉटम फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर दे रहा है। DMC और SMC के ग्रेजुएट्स जो मेरे साथ हमेशा से रहे हैं और वो इंडस की एक प्रोग्रेस रही है वो हमारे सबके सामने है और इंशाल्लाह अब जो है ये UK के और आयरलैंड के रेसिडेंट इसके लिए बड़ी हेल्प कर रहे हैं और मेरे साथ मेरे दूसरे कोलीग डॉक्टर नादिर, डॉक्टर आमिर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये सिलसिला बहुत ही एक आगे तक चलने के लिए तैयार है। हमने रिसेंटली ये रॉस्टेल में ऑफ़िस खोला है, बल्कि ये हमारे एक ट्रस्टी ने हमें फ्री ऑफ़िस डेडिकेट किया अपनी पूरी बिल्डिंग। तो इंडस हॉस्पिटल्स पाकिस्तान में ऐसे स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल्स हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ विज़िट इंडस हॉस्पिटल्स। जब पेशेंट वहाँ पे कोई भी मरीज़ एंटर होता है उसे कोई पैसे नहीं देने पड़ते, कोई पर्ची नहीं है, पेपरलेस हॉस्पिटल्स हैं और उसमें हर फैसिलिटी फ्री है। अभी इनके हर शहर में हॉस्पिटल खुल रहे हैं, कराची में पहले है, लाहौर में है। शुरा का मजीद कहना था कि इंडस हेल्थ नेटवर्क जैसे फ्री इलाज मालजे की सहूलत देने वाले अदारे की हमें हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान में बरतानवी तर्ज के NHS सिस्टम को इंडस नेटवर्क हॉस्पिटल की सूरत में मुतारिफ करवाना नहायती खुश आइंद है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर। मैनचेस्टर के मकामी हॉल में डॉक्टर सुलेमान शाहिद और सैफ शफकत ने बिजनेस नेटवर्किंग तकरीब मुनक्किद की, जिसमें पाकिस्तान में बरतानवी डेप्टी हाई कमिश्नर और ट्रेड डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान माइक नेथाबरांस्कन, जनरल मैनचेस्टर तारिक वज़ीर, कारोबारी शख्सियत अनिल मुसरत समेत बड़ी तादाद सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मैनचेस्टर से राजा वाजिद। मैनचेस्टर में डॉक्टर सुलेमान शाहिद और सैफ शफकत की जानब से बिजनेस नेटवर्किंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर और ट्रेड डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान माइक नेथराविनक्स, कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर और ट्रेड डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तजारत को फरोग दिया जा सके। तकरीब में डिप्टी हाई कमिश्नर और ट्रेड डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान माइक ने हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनर्जी सेक्टर समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी पर भरपूर ब्रीफिंग दी। तकरीब में बिजनेसमैन अनिल मुसरत, डॉक्टर जाहिद चौहान ने भी पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत के फरोग के लिए इकदामात पर जोर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी हाई कमिश्नर और ट्रेड डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान माइक, कारोबारी शख्सियत अनिल मुसरत, लॉर्ड वाजिद खान, MP जेम्स डेली, डॉक्टर सुलेमान शाहिद, सैफ शफकत, कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर और दीगर ने पाकिस्तान और बरतानिया में तिजारत के हालात को इंतहाई साजगार करार दिया। उन्होंने ब्रेक्जिट के बाद पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ट्रेड को बढ़ाने पर भी जोर दिया। नया पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वादा किया था वो सबके लिए एक होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। तो उसमें ये नहीं है कि फेवरेटिज्म होगी, किसी को प्रायोरिटी मिलेगी, आम बंदे को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओवरसीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े असासा हैं, वो रिमिटेंसेस भी भेजते हैं, उनके पास स्किल सेट भी है, उनके पास क्योंकि ओवरसीज़ से ट्रेनिंग है उनकी, यहाँ UK, यूरोप, अमेरिका में उन्होंने अपना स्किल बनाया है, दौलत बनाई है, तो वो अपना टैलेंट भी और कैपिटल भी पाकिस्तान लेके जाएंगे। Well, I'm here to encourage that. I know that the British government have, I think, 1.5 billion of funds that they want to seek to invest and encourage British citizens to invest in Pakistan and have a reciprocal business relationship.
I, as a Conservative Member of Parliament from the north of England, have a large constituency made up of a significant proportion of constituents of Kashmiri and Pakistani heritage. पाकिस्तान से वापस आया हूँ तो मेरी क़यादत पाकिस्तान क़यादत के साथ मीटिंग थी, PM साहब और प्रेसिडेंट साहब और फॉरेन मिनिस्टर साहब और मुख्तलिफ मीटिंग थी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान इज़ एट अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। एक तो अफ़गानिस्तान के हवाले से, दूसरा जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट, रोशन डिजिटल अकाउंट, काफ़ी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। मेरा ख्याल थे, मेरा जो मीटिंग खान साहब के साथ थी वो एक वेल इंटेंशन गुड हार्टेड मैन है, लेकिन इनकी जो वाइडर टीम को भी अपना जो किरदार, अपना जो कारकर्दगी थोड़ा उठाएँ, रेज़ द गेम, और पाकिस्तान के जो मुश्किल हालात अभी दुनिया में आए, महंगाई के हवाले से, फ्यूल प्राइसेस, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम दुआ गो हैं कि जैसे हमारे UK में भी बेहतरी आए, पाकिस्तान में भी आए। एक नेटवर्किंग इवेंट है बेसिकली, और मैं यही देख के खुश हुआ हूँ कि हमारे लोगों को जो मॉडर्न ज़मानों के तकाज़ों के मुताबिक इवेंट्स भी करने शुरू किए हैं। और डॉक्टर सलमान और सरफराज, आई बेसिकली अपलॉड देम फॉर दिस इवेंट। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ हमारे यहाँ आज हुई, वो बातें ये हुई कि पाकिस्तान में जो इन्वायरमेंट है मुख्तलिफ हवाले से इन्वेस्टमेंट के लिए ख़ास तौर पे, वो बहुत बेहतर हुई है। आइडिया ये है कि जो हेल्थ केयर, एजुकेशन और बिज़नेस कम्युनिटी है मैनचेस्टर में और UK में, वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है पोस्ट कोविड टाइम या पोस्ट ब्रेक्सिट टाइम। और उस सिलसिले में जो की स्पीकर्स हैं या जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं, हमने उनको इन्वाइट किया है ताकि वो अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें कि किस तरीके से अब हम दुनिया को दूसरे डायरेक्शन में जाते हुए देखते हैं। पाकिस्तान के लिए अभी जो ब्रेक्सिट के बाद, स्पेशली कोविड की वजह से, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वर्क फोर्स यहाँ लाने के लिए नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिक, फिजियोथेरापिस्ट, और उसके अलावा ख़ास तौर पे जो बैक ऑफिस है हेल्थ सर्विस का, उसे पाकिस्तान में सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि माइक, डिप्टी हाई कमिश्नर और ट्रेड डायरेक्टर आज यहाँ मैनचेस्टर आए हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बात करने के लिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ के बिज़नेस मैन वुमेन हैं, जिनके छोटे बिज़नेस हों या बड़े बिज़नेस हों, कि वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट कर सकें। तकरीब में दोनों तरफ पाकिस्तान और बरतानिया की हुकूमतों की जानब से एक दूसरे को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई गई। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। बरतानवी माहिर कानून सोलिसिटर आमिर मंजूर ने इमिग्रेशन कानून में तब्दीलियों के हवाले से लंदन में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि पेट्रोल के बहरान से लोगों को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ा। लारी ड्राइवर्स की कमी शिद्दत से महसूस हुई, जिसे पूरा करने के लिए बरतानवी हुकूमत क्रिसमस तक हज़ारों ड्राइवर्स को बरतानिया दाखिले की इजाज़त देगी। सोलिसिटर आमिर मंजूर ने मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। देखिए, यूके के अंदर आपने देखा रिसेंटली जो तेल की डिलीवरी का जो बहरान आया है, उसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। यूके की गवर्नमेंट ने ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ किया है कि आल दो कि यूरोप से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे माइग्रेशन हुई है, लेकिन वो लोग जो कि यूके को रिक्वायर्ड थे, जिसमें लॉरी ड्राइवर्स जो है वो कभी भी इससे पहले ये नहीं गवर्नमेंट ने एहसास किया था कि हमें शायद कभी लॉरी ड्राइवर्स की भी कमी महसूस होगी, तो वो इस मौके के ऊपर वो रियलाइज़ किया गया है। इसको देखते हुए यूके की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम जो क्रिसमस का टाइम पीरियड है, तब तक हम क्रिसमस ईव तक जो है वो 5000 के लगभग जो ड्राइवर्स हैं, वो उनको हम जो टेम्परेरी वीज़ास देंगे ताकि वो यहाँ पर आके काम कर सकें, और जितना भी जो डिलीवरी का, ऑयल की डिलीवरी या दूसरी जितनी भी डिलीवरीज की जो प्रॉब्लम आई है, उसको किसी तरीके से रिजॉल्व किया जा सके। अब जो स्पेशली पाकिस्तानी लोग जो कि यूएई में या दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं, जिनके पास हैवी लाइसेंस हैं इसकी लॉरीज़ के, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यूके के अंदर वो जो टेम्परेरी वीज़ास ग्रांट होंगे उसके लिए वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यूएई या किसी ऐसे दूसरे ममालिक में जहाँ का जो हैवी जो ट्रक का लाइसेंस यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, तो अगर कोई ऐसी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो ही स्टार्ट होती है तो आप लोग उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये भी चांसेस हैं कि जिस तरीके से ये भी कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी वीज़ा होगा, तो ऑफ कोर्स ये लॉरी ड्राइवर्स की कमी इतनी जल्दी तो पूरी नहीं होने वाली, तो लगता है कि शायद ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वीज़ाज फ्यूचर में जो उसको एक्सटेंड भी किया जा सके। देखें, जो लोग अनफॉर्चुनेटली जो डेडलाइन थी 30 जून की, उससे पहले अप्लाई नहीं कर सके, उनको गवर्नमेंट ने फर्दर जो होम ऑफिस ने उनको अलाउ किया है कि अगर उनके पास कोई वैलिड रीज़न मौजूद थी कि वो ऑन टाइम एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सके थे, जैसे कि कोई मेडिकल रीज़न थी या वो कहीं स्टक हो गए किसी दूसरे कंट्री में और वो अप्लाई नहीं कर सके, तो वो वैलिड रीज़न दे के तो इसके तहत अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। कोलन शहर में दुनिया का सबसे बड़ा अनोखा फूड एंड बेवरेजेस ट्रेड फेयर जारी है, जिसमें पाकिस्तान से ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बैनर तले 22 लीडिंग फूड कंपनी शिरकत कर रही हैं, जो बासमती राइस, पिंक सॉल्ट,
स्पाइस, प्रोसेस फूड, फ्रोज़न फूड, जूसेस, बेकरी प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल डेट्स और हर्बल फूड की नुमाइश कर रही हैं। पूरी दुनिया से 5000 से ज़ायद बिजनेस ग्रुप शिरकत कर रहे हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं कोलन से इमरान महर की रिपोर्ट। कोलोन शहर हर 2 साल बाद अनोखा फूड एंड बेवरेजेस फेयर में दुनिया भर से हज़ारों की तादाद में आने वाले लोगों को वेलकम करता है। इस मरतबा 70,000 से ज़ायद लोगों ने 97 ममालिक के 5,000 के करीब स्टॉल्स का विजिट किया। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 22 से ज़ायद और पाकिस्तान भर से 36 नुमाइशी स्टॉल्स ने अपनी प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवाई, जिनमें बासमती राइस, पिंक सॉल्ट, स्पाइसेस, प्रोसेस्ड फूड्स, फ्रोजन फूड्स, जूसेस, बेकरी आइटम्स, ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल डेट्स और हर्बल फूड शामिल थे। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स मुतमिन दिखाई दिए कि टीडैप और पाकिस्तानी हुकूमत के ताउन से वो अपनी प्रोडक्ट्स यूरोपीय यूनियन में मुतारिफ करवा रहे हैं। 92 न्यूज़ से बात करते हुए उनका मजीद कहना था, हमें ज़बरदस्त एक्सपीरियंस यहाँ पे हुआ। टीडैप ने हमारे बहुत मदद किया और हम काफ़ी खुश हैं। हमारे बराबर में इंडिया वाले थे, उनको कोई पूछने नहीं आते थे, तो टीडैप ने यहाँ पे हमें लगने नहीं दिया कि हम जर्मनी में हैं। हमें तो यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, मेरे हिसाब से तो ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें पाकिस्तान से लेके जर्मन तक आने में भी कोई दिक्कत नहीं आई और यहाँ पे भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था। और हमारे जो हमारी गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, इन्होंने भी हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, दुनिया भर में जितनी कंपनीज़ हैं, हम यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे तकरीबन 5,000 से ज़्यादा कंपनीज़ मौजूद हैं और सबको इस वक्त यही चैलेंज है सबसे ज़्यादा कि शिपिंग प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं, फ्रेट कॉस्ट इस वक्त माल की जितनी कीमत नहीं है उससे ज़्यादा फ्रेट की कॉस्ट है। लेकिन चूँकि हम लोग फूड बिज़नेस में है, फूड इंडस्ट्री में है, बिज़नेस अफेक्ट ज़रूर हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। अच्छी एग्जीबिशन रही है। कोविड के बाद काफ़ी अरसे से हर चीज़ क्लोज थी। अब हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे ऑर्डर मिलेंगे और हमारे लिए और मुल्क के लिए बहुत बेहतरी होगी। इसके साथ पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का ये भी कहना था कि कंटेनर प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं, जिसके नतीजे में उनकी मसनूआत यूरोपियन मार्केट में भेजने में उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो शिपिंग कंपनीज से बात करके उनको सब्सिडी दिलाएं। ट्रेड फेयर में बड़ी तादाद में लोगों ने पाकिस्तानी पेविलियन का रुख किया। इमरान महर, 92 न्यूज़, कोलोन, जर्मनी। पाकिस्तान ओवरसीज़ बलोच यूनिटी के चेयरमैन डॉक्टर जुमा खान मरी ने कहा है कि अफगानिस्तान की अक्सरियत तालिबान की हुकूमत की हिमायत में है। अगर तालिबान को तनहा करने की कोशिश की गई तो खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। भारत का असल मकसद अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करना था। उन्होंने हमारे नुमाइंदे शाहिद घुम्मन के साथ मॉस्को में गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉस्को में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ बलोच यूनिटी के चेयरमैन डॉक्टर जुमा खान मरी और आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे। तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है और डॉक्टर जुमा खान मरी तालिबान और अफ़गानिस्तान पर कड़ी नज़र रखते हैं और इनसे कुछ सवालात करते हैं। चलते हैं डॉक्टर जुमा खान मरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। साहब, तालिबान की हुकूमत आ गई अफ़गानिस्तान पे, इसके क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान पे और ख़ित्ते पे? जी, मेरे ख़्याल में कि अच्छे असरात मुरतब होंगे। वजह ये है कि अभी अफ़गानिस्तान में अमन आनी चाहिए। अफ़गान अवाम का ख्वाहिश भी तालिबानों के साथ है, जो अक्सरियत है वो अफ़गान तालिबान के साथ है। बाकी ख़ित्ते में अमन आना चाहिए इसके बाद और दुनिया को तालिबान को एक्सेप्ट करना चाहिए। वजह ये है कि अगर तालिबान नाकाम हो गए तो अफ़गानिस्तान में फिर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, जो पूरे खित्ते के लिए एक बड़ा मसला क्रिएट करेगा। डॉक्टर साहब, भारत बेआबरू होकर निकला अफ़गानिस्तान से और उसकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी ख़त्म हो गई, इस पे आप क्या? जी, भारत हमेशा बेआबरू रहा अफ़गानिस्तान में, ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार बेआबरू होके जा रहा है। वजह ये है कि भारत कभी अफ़गानों के साथ सिंसियर नहीं था। उनका मेन एम ये था कि पाकिस्तान को किस तरह मसले पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर जाएँ, क्योंकि ईस्टर्न बॉर्डर पर पहले उनका फ़ौज खड़ा है, इस तरफ अफ़गानिस्तान में बैठकर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी एक मुहाज़ चला रहा था, जिसमें बलोच नेशनलिस्टों से लेकर PTI और जितने TTP ये सब को फंडिंग कर रहे थे ताकि पाकिस्तान को इंस्टेबल किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भारत की जो जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो भी ज़ाया हो गया और उनके सारे अज़ाइम जो है ना वो पानी में मिल गए। आलमी सतह पे तालिबान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है।
वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस बारे में ख़बरदार कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो कैसी सूरत हाल होगी? पहले तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो आजकल अपनी 20 साल की जंग हार चुकी है, वो परेशान है कि वो किस तरह बेआबरू होकर अफ़गानिस्तान से चले गए। ज़ाहिर है कि उनको अपने आबरू वापस लेने के लिए टाइम भी लगेगा, और इसके लिए वो थोड़ा सा अफ़गान ये तालिबान गवर्नमेंट को प्रेस भी करेंगे ताकि उनकी जो बेसिक डिमांड है, ह्यूमन राइट वगैरह, इंक्लूसिव गवर्नमेंट, इसके लिए वो प्रेशराइज़ करेंगे। मेरे ख़्याल में आहिस्ता आहिस्ता हालात मामूल पर आ जाएंगे। अभी तो तालिबानों की हुकूमत दो महीने की भी नहीं हुई। उनको अपनी हुकूमत असर्टिव करना चाहिए अफ़गानिस्तान में, हालात को मामूल पर ला कर फिर जो है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से वो फिर से रुजू करें तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल कम्युनिटी अच्छा रेस्पॉन्स देगा। अगर उन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया, ये न सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक की बात है, क्योंकि दोबारा टेररिज्म बहाल हो जाएगी, इंटरनल अफ़गान कन्फ्लिक्ट और खाना जंगी शुरू हो जाएगी। इसमें किसी मुल्क का भी फ़ायदा नहीं है। स्कर्दू में खातून कोपैमा आमना शिगरी के एजाज़ में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की शिरकत। कहती हैं बल्दिस्तान की ख़वातीन में टैलेंट और बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। कोपैमा आमना शिगरी ख़वातीन के लिए रोल मॉडल है। स्कर्दू से रजब अली कमर की रिपोर्ट देखिए। शिगर फोर्ट में खातून कोहपैमा आमना शिगरी के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वजीर आजम इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए अलीमा खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन में टैलेंट और बेपनाह सलाहियत मौजूद है। कोहपैमा आमना शिगरी खवातीन के लिए रोल मॉडल है। सूबाई वजीर तालीम राजा आजिम खान का कहना था कि आमना शिगरी ने शिगर और गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन किया। ये काबिल तहसीन है, ये एक खातून होते हुए, एक बच्ची होते हुए मेरी इस बेटी ने न सिर्फ हमारे अहलियान शिगर का बल्कि पूरे बल्तिस्तान के सर फख्र से बुलंद किया। कमसन कोहपैमा आमना शिगरी ने 6400 मीटर होसर गंग चोटी सर करके मुल्क कौम का नाम बुलंद किया था। तकरीब के दौरान कोहपैमा आमना शिगरी इंतहाई खुश दिखाई दे रही थी। उसने तकरीब के इनेकाद पर मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। बहुत खुश हूँ। मुझे इंतजामिया की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिला था, रिस्पॉन्स नहीं मिला था। इस बात पे थोड़ी मैं खफा हो गई थी, मगर अब उन्होंने किया है तो बहुत शुक्रिया। तकरीब के इख्तिताम पर अलीमा खान और सूबाई वजीर तालीम राजा आजिम खान ने बाहिम्मत कमसन कोहपैमा आमना शिगरी को नकद इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा। रजब अली कमर, 92 न्यूज़, स्कर्दू।